السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. امید ہے کہ آپ حضرات مجھے سن پا رہے ہوں گے. اگر سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو پھر وہ کیجئے جو آپ کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے اپنے گروپس میں انشاءاللہ تعالی. تو میں بھی اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر اس کو شیئر کر رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. گزشتہ کئی ہفتوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے شروع میں لاجک 101، اور اچھی بات ہے کہ کچھ مرتدین اور ملحدین حضرات بھی ہم سے لاجک سیکھ رہے ہیں اور ہماری اس لاجک کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک چیز جب وہ کرٹیسائز کریں تو میں ایک چیز ان کے گوشے گزار کرانا چاہوں، اور وہ یہ کہ آپ کا کرٹیسزم ویلکمڈ ہے ڈیفینیٹلی. اور ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں یہاں پر تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے. کسی کو اگر وہ صحیح لگ رہی ہے، ریشنل لگ رہی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اور اگر کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور وہ کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو کرٹیسائز کرے. کرٹیسزم کے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہ پرنسپلز پیش کرتے ہیں، ابھی تک کے 6 اصول ہو چکے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کوہیرنٹ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ضابطے کے اوپر انڈیپینڈنٹلی عمل کر رہے ہوں اور دوسرے کے اوپر ہم نے دوسرے کو اگنور کر دیا ہو، بلکہ یہ سارے کے سارے کوہیرنٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اصول سے آپ کا کوئی ایجنڈا ثابت ہوتا ہو کہ ارے پکڑے گیا، مسلمان پکڑے گئے، دیکھو ان کا اصول ہم توڑ دیں گے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے اصول سے پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ اس کو ایک کوہیرنٹ ماڈل کے طور پر لے کر چلیں. یہ الگ بات ہے کہ میں مکمل بات ایک ہی ویڈیو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا ڈرائی ٹاپک ہے، اور پیسز میں اگر ہم اس پر بات کریں گے تو لوگوں کے لیے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا. تو سب سے پہلے میں آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے، میں آج ایک ہی اصول ذکر کروں گا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ، اور آپ حضرات اس کو انشاءاللہ غور سے سنیے گا. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم آلریڈی لاجک 101 کے تحت 1 2 3 4 5 6 یہ 6 پرنسپلز آلریڈی کور کر چکے ہیں، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں نمبر 7. جو 7th پرنسپل ہے وہ دراصل ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے، اور یہ ہائپوتھیٹیکل سینیریو بہت سی مرتبہ پیش بھی آ جاتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ only 4 situations are rationally possible in which there can be a contradiction between a rational argument and a textual argument. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک عقلی دلیل ہے جس کو ہم ریشنل آرگیومنٹ کہتے ہیں، اور ایک نقلی دلیل ہے جس کو ہم ٹیکسچوئل آرگیومنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ آرگیومنٹ ٹیکسٹ بیسڈ ہے. اب یہاں پر جو ہماری اس لاجک 101 پریزنٹیشن پر کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس طرح تو پھر کوئی بھی ٹیکسٹ ہم لے آئیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے تو کیا آپ مان لیں گے. یہاں پر یہ ایک illogical کلیم ان کی طرف سے آتا ہے جو ہماری اس پریزنٹیشن کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہم ٹیکسچوئل ایویڈنس یا ٹیکسچوئل آرگیومنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کلام کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کلام خدا کی طرف سے آیا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا، تو پھر اس کے لیے یہ پریزنٹیشن ہے ہی نہیں. پھر خدا کے وجود پر بات کریں گے. اگر خدا کا وجود ثابت ہو چکا، اور یہ ثابت ہو چکا کہ خدا کی کیریکٹرسٹکس بھی ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ خدا کی ان کیریکٹرسٹکس میں، ان صفات اور کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، وہ اپنی بات انسانیت کو
पहुंचाने पर कुदरत रख न सिर्फ ये कि कुदरत रखता है बल्कि पहुंचाता है, जब ये सारी चीजें साबित हो गई और ये साबित हो चुका कि कुरान जैसा कोई कलाम आज तक नहीं लिख सका और कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, यानी ये सारी चीजें साबित हो चुकी, तो ऐसा जो कलाम है उसको हम टेक्सचुअल एविडेंस कह रहे हैं। हम किसी भी नॉवेल को या किसी अफसाने की किताब को या किसी आम आदमी की लिखी हुई किताब को टेक्सचुअल एविडेंस नहीं कह रहे हैं। तो अगर मान लें किसी रैशनल आर्ग्यूमेंट और टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट, यानी कुरान का जो आर्ग्यूमेंट है या कुरान की कोई आयत है, इन दोनों के दरमियान अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसकी कितनी पॉसिबल सिनेरियोज हैं, कितनी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि इसकी सिर्फ 4 पॉसिबल सिचुएशंस हैं और चारों की के जो में हमारा जो तरीका है, हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या है, हम उसको इंशाल्लाह आज उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि बोथ आर डेफिनेटिव। बोथ आर डेफिनेटिव का मतलब ये हुआ कि दोनों, यानी रैशनल आर्ग्यूमेंट भी और टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट भी, दोनों के दोनों डेफिनेटिव हैं, यानी दोनों के दोनों कतई हैं। कतई का मतलब ये होता है कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसको जिस तरीके जो आप उसको एज इट इज आपको लेना पड़ेगा, ये है डेफिनेटिव का मतलब कि बिल्कुल कंक्लूसिव, फाइनल, कि उसमें अब आप उसको कोई किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये डेफिनेटिव है। तो अगर मान लें कोई अकली दलील है वो भी डेफिनेटिव है, और कोई कुरानी आयत है जिसको हम नकली दलील करें, टेक्सचुअल एविडेंस, वो भी डेफिनेटिव है, तो क्या इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन वजूद ही नहीं रखता। अगर है तो फिर सामने कोई लेकर आए। आज तक तो कोई पेश नहीं कर सका कि दोनों के दोनों डेफिनेटिव हों और दोनों के दरमियान इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा हो कि एक को सही माने तो दूसरा गलत और दूसरे को सही माने तो पहला गलत। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब भी यही होता है, बहुत से लोग कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसका कोई वजूद नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा कि इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये है हमारी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, बोथ आर इंडेफिनेटिव। बाय द वे, ये मत समझिएगा कि ये स्पेलिंग एरर है अगर उसके नीचे लाइन आपको दिख रही है, लेकिन बहरहाल ये एक टर्म है और ये फिलॉसफी में इस्तेमाल होती है। बोथ आर इंडेफिनेटिव क्या मतलब है? दोनों टेक्सचुअल और रैशनल दोनों आर्ग्यूमेंट्स इंडेफिनेटिव हैं इन द सेंस कि आप दोनों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो ऐसी सूरत में हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये है कि टेक्स्ट विल बी इन इट्स लिटरल सेंस, कि हम टेक्सचुअल एविडेंस को लिटरल सेंस में लेंगे और जो रैशनल आर्ग्यूमेंट है उसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं और वो मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल ये है कि मसलन कुरान करीम ने, बल्कि चूंकि ये बोथ आर इंडेफिनेटिव है, हाँ, तो इसकी जो मिसाल होगी वो ये कि अगर सीसीटीवी कैमरे में आपको ये लग रहा है कि एक जगह जुर्म हुआ और वहां पर एक शख्स मौजूद है, यानी जो वारदात की जो जगह है, जाए वारदात जिसको कहा जाता है, वहां एक शख्स मौजूद है। 10 बजे जुर्म हुआ और 10 बजे वो शख्स सीसीटीवी में दिख रहा है, लेकिन उससे यह साबित नहीं हो रहा है कि जुर्म भी इसी ने किया होगा। जाए वारदात पर होने का मतलब यह नहीं कि वारदात आपने अंजाम दी है। तो अब ये आपके सामने एक रैशनल आर्ग्यूमेंट है, अदालत में पेश किया जा सकता है कि भाई देखो, सीसीटीवी फुटेज से यह पता चल रहा है कि यह बंदा 10 बजे जब जुर्म हुआ तो यहां मौजूद था। अब इससे रैशनली यह पता चलता है कि हो सकता है कि इसने जुर्म किया हो, वरना यह क्या कर रहा था यहां पर। अब उसके मुकाबले में टेक्सचुअल एविडेंस आता है या टेस्टिमनी आती है, इसको टेस्टिमनी कह लीजिए, वो भी टेक्सचुअल एविडेंस ही की तरह है, कि दो क्रेडिबल बंदे कि जो बिल्कुल सिका हैं, रिलायबल हैं, वो झूठ नहीं बोलते, उन्होंने झूठी गवाही कभी नहीं दी, सच्चे हैं, वो आकर कोर्ट में ये कहते हैं कि 10 बजे अगर जुर्म हुआ तो 9 बजे तो ये हमारे सामने से निकलकर दिल्ली की ट्रेन में बैठकर चला भी गया था। तो जब ये 9 बजे चला गया था दिल्ली की ट्रेन में बैठकर, तो अब ये जाए वारदात पर कैसे हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि टाइमिंग, जो कैमरे में जो टाइमिंग है वो गलत हो, या कैमरा सही से न दिखा पा रहा हो, वगैरह वगैरह, उसकी 10 तावीलें हो सकती हैं, लेकिन ये कि ये बंदा चला गया था। अच्छा, अब देखें, ये वाला जो टेस्टिमनी है, इसके अंदर भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इसको भी काउंटर कर सकते हैं। वो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि वो ट्रेन में तुम्हें चकमा देने के लिए बैठा हो, जैसे ही ट्रेन आगे चली हो वो आगे से उतर गया हो, ताकि 10 बजे जाकर वो जाए वारदात पर पहुंचकर वारदात अंजाम दे दे और जुर्म का इर्तिकाब कर ले। ये भी तो पॉसिबल है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट है वो भी इंडेफिनेटिव है, और जो
रैशनल आर्ग्यूमेंट है वो भी इंडेफिनेटिव है, दोनों में इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। अब हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये है, किसी को अगर इस पर एतराज है तो हुआ करे, लेकिन हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी वो ये है कि जो टेक्सचुअल जो आर्ग्यूमेंट है हम उसको प्रेफरेंस देंगे, नहीं उसको उसके लिटरल सेंस में लेंगे। हम ये कहेंगे चूंकि दो क्रेडिबल गवाह के जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो ये गवाही दे रहे हैं कि बंदा ट्रेन में बैठकर चला गया था, उन्होंने उसको ट्रेन से उतरते हुए नहीं देखा, लिहाजा उस गवाही की बुनियाद पर इस बंदे के खिलाफ जुर्म साबित नहीं होता। जो कि जुर्म साबित करने के लिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है यानी चाहिए, ऐसा कि किसी तरह भी उस पर शक न किया जा सकता हो, ऐसा सबूत चाहिए, और वो सबूत है नहीं। लिहाजा उस बंदे को इसकी बुनियाद पर अदालत में भी छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता। तो ऐसे ही अगर ये सूरत हाल मसलन कुरान में हो जाए, कुरान और अकली दलील में, तो उसमें भी फिर हमारा रवैया यही होता है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो ये है कि नंबर सी जो थर्ड है, A B C, right? The textual argument is definitive and the rational is indefinitive. Textual is given preference. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, यानी उसमें आप डाउट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कंक्लूसिव है, 100% एक्यूरेट है। लेकिन जो रैशनल है वो इंडेफिनेटिव है, रैशनल जो है उसके अंदर वो कंक्लूसिव नहीं है, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम टेक्सचुअल को ही प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। वो मिसाल ये है कि कुरान करीम में मसलन एक आयत है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। तो कुरान करीम ये कहता है कि हर चीज फलक में यानी स्पेस में यस्बहून तैर रही है, यानी चल रही है, मूव हो रही है, हर चीज मोशन में है। अब साइंस एक अरसे तक ये मानती रही 1918 तक कि सूरज जो है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर साइंसदानों को पता चला कि नहीं, वो भी मूव हो रहा है अपने मिल्की वे के अराउंड। तो ये जो चीज है ये 1918 में जाकर साइंस ने डिस्कवर की है। लेकिन कुरान का ये ऐलान है कि हर चीज मोशन में है, और इस तरह का मोशन है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, इसी को यस्बहून कहा जाता है। मुझे यहां पर आप लोग इस एतबार से गलत ना समझें कि मैं कुरान की तायीद साइंस से ले रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि साइंस ने जब ये नहीं माना था, हम तब भी यही मान रहे थे, और इट डजंट रियली मैटर कि आज अगर साइंस ये मानना शुरू कर दे तो हम अपनी इस इंटरप्रिटेशन को नहीं बदलेंगे, चूंकि जो हमारा जो दावा है वो टेक्सचुअल एविडेंस और आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, जो कि डेफिनेटिव है, और साइंस का जो दावा है वो रैशनल आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस करता है, और ये इंडेफिनेटिव है, जब ये चेंज भी हो जाता है। तो हम टेक्सचुअल एविडेंस को और आर्ग्यूमेंट को प्रेफरेंस देंगे रैशनल आर्ग्यूमेंट के मुकाबले में। अच्छा, अब आखिरी जो सूरत है, जो सिनेरियो है, वो है द रैशनल आर्ग्यूमेंट इज इंडेफिनेटिव एंड द रैशनल दी टेक्सचुअल होना चाहिए यहां पर, सॉरी, ये इसको मैं ठीक कर देता हूं। दी textual argument is indefinitive and the rational is definitive। कि जो टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट है उसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है, लेकिन जो रैशनल आर्ग्यूमेंट है उसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट को नॉन लिटरल सेंस में लेंगे, यानी उसको उसकी जाहिर के ऊपर महमूल नहीं करेंगे, उसके जाहिरी माना मुराद नहीं लेंगे, बल्कि जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि यहां जाहिरी माना मुराद नहीं है। उसकी एक मिसाल दे देता हूं कुरान करीम से। कुरान करीम में आयत है सूरह कहफ में, अल्लाह ताला फरमाता है कि जुल्करनैन ने सूरज को देखा कि वो मरकरी वाटर में, मरकरी पानी में, यानी आइन इन हमिया, उसमें गुरूब हो रहा है। तो अब यहां पर ये आयत आई और उसके बाद वजदहा तगरुबु फी आइन इन हमिया, लेकिन उसके मुकाबले में रैशनली, ऑब्जर्वेशन बेस्ड या रैशनली हमें ये पता है कि भाई सूरज इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, सूरज इस दुनिया की किसी भी बड़े से बड़े समंदर में गुरूब नहीं हो सकता कि वो उसमें चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये जो रैशनल आर्ग्यूमेंट है ये डेफिनेटिव है, कंक्लूसिव है, इसमें इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट है, अब हम उसके अंदर उसको ये कहेंगे कि ये नॉन लिटरल सेंस में है। और नॉन लिटरल सेंस में इस माना अगर है कि ववजदा कि जुल्करनैन ने पाया, यानी कुरान जुल्करनैन के उस एहसास को बयान कर रहा है। कुरान ने गलत बात बयान नहीं की, कुरान ने जुल्करनैन के उस एहसास को, उस कैफियत को बयान किया जो उस वक्त उनकी हो रही थी। जब वो सनसेट के वक्त सीशोर पे थे तो उनको ऐसा लगा कि सूरज जो है वो पानी में
डूब रहा है, गुरूब हो रहा है, और आप भी अगर जबरदस्त सनसेट का मजा लेना चाहते हैं तो कहां जाते हैं? या तो आप पहाड़ों पर जाते हैं, और या फिर आप समंदर के किनारे जाते हैं, और सनसेट के करीब जिस वक्त सनसेट का टाइम है उस वक्त आप बीच पर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि सूरज समंदर में पानी में गुरूब हो रहा है। तो उस एहसास को, उस कैफियत को जुल्करनैन की कुरान ने बयान किया है, लिहाजा उसको हम जो लिटरल सेंस है उसमें नहीं लेंगे बल्कि नॉन लिटरल सेंस में लेंगे। ये 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है। 4 पॉसिबल सिचुएशंस हैं, और उसमें हमने ये अपनी एपिस्टेमोलॉजी बयान की है। लेकिन ये इस पर डिपेंड करती है कि टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट यानी जो कुरान है वो ऑथेंटिकली साबित हो चुका हो। अगर किसी को उसकी ऑथेंटिसिटी में प्रॉब्लम है तो ये उसूल उसके लिए नहीं है, फिर वो कुरान की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करे। लेकिन अगर एक मर्तबा ये साबित हो चुका कि कुरान ऑथेंटिक है, खुदा का कलाम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा दिया वहां से लेकर आज तक वो वैसा ही हम तक पहुंचा है, तब कुरान करीम को उसने डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट माना है, तब फिर ये उसूल और जवाबित काम में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज मुख्तसर अंदाज में ही मैंने बयान की है, लेकिन समझ में आ गई होगी कि इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी और रैशनल बेसिस पर, लॉजिकल बेसिस पे किस तरीके से काम करती है इंशाअल्लाह ताला। अब बाकी जो है वो फिर हम आगे जिक्र करेंगे। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि ये जो 4 सिनेरियोज हैं ये मैंने जहां से लिए वहां से तो लिए, मैंने इससे पहले भी हवाला दिया था, लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब दरउ तारुज़ुल अक्ल व नक़ल में भी शुरू में पहली जिल्द में इन 4 सिनेरियोज को जिक्र किया है, और इसी अंदाज से उन्होंने भी गुफ्तगू की है। तो ये उसका एक 2 रेफरेंस आपके सामने, एक रेफरेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अच्छा जी, तो अब हमारे साथ आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।